How are you all? My name is Aftab sir and I will be teaching you mathematics. And today's I will start first chapter, that is number system. Number system. Note it down in your maths copy. And our first topic is integers. Before integers, we will study some basic concept, that is natural number. Natural number. So what are natural numbers? I think all of you know this. Okay, let's see. If we have some ball and we have to count this ball, we always start counting from 1. 1, 2, 3, 4 and 5. This is called natural numbers. So we can define natural numbers as counting numbers. Counting numbers are called natural numbers. Counting numbers are called natural numbers. Okay? And it is represented by, we always represent, it is represented by capital letter N, and N will represent like this: 1, 2, 3, 4, and this set of numbers are natural numbers. 1 is the smallest natural numbers, and which is the greatest natural numbers? It is infinity, not defined. It is the smallest one, and largest one is still not defined. And the next definition is whole number. Whole number. What are whole numbers? If we start counting from 0, it is whole number. When 0 is included, when 0 is included in natural number, in natural numbers, this set of numbers are called whole numbers. Are called whole numbers. And we always represent this whole number by using capital W. And we always include this, we always use this curly bracket. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. So if anyone asks you which is the smallest whole number, so we say 0 is the smallest whole number. And which is the largest whole number? Again it is not defined, we can say infinity. Now next is integers. Next is integers. What are integers? Look, what are integers? If we try to locate this number on the number line, we will represent like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are natural numbers, and it is always positive. It is always positive. Some mathematician thought for every natural number, for every positive natural number, there exists a negative number also. For plus 1, there will be a minus 1. For plus 2, there will be a number minus 2. And for plus 3, there is minus 3. For plus 4, minus 4, and like this, and so on. For every natural numbers, there exists a negative number also. And these positive and negative numbers are separated by a number 0. And these whole numbers which you are seeing on the whiteboard are integers. So we can define integers as natural numbers. Natural numbers along with 0 and their negatives and their
नेगेटिव्स, इसका नेगेटिव, नेचुरल नंबर का नेगेटिव है ना, नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है सबका नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर उसका नेगेटिव और साथ में जीरो सबको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड integers, okay, and these integers are always represented, it is represented by I or Z, okay। I or Z, and we can write it in the curly bracket as dot 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 up to infinity. All these numbers are integers and these are called positive integers. These are called positive integer and these are called negative integers. The numbers lying right to the zero is positive integers and the number lying just before the zero is called negative integers, and we always put sign before any integers, negative integers. Every integers contains sign before their number. Here for 4 to -4 -3 -2 -1, here +1 +2 +3 +4. Every integers contain sign with it, but 0 is an only integers which contain neither positive nor negative. So 0 is neither positive nor negative, though it is integer, but it does not contain any sign with it, neither positive nor negative, but it is integers. Now next topic is successor. Next topic is successor. What is the meaning of successor? A number more than a given integers. सपोज किसी भी नंबर का मुझे सक्सेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 ऐड कर देंगे। एग्जांपल दे सपोज क्वेश्चन बोलेगा कि सक्सेसर ऑफ 3, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज +3. वी नेवर राइट +3, इफ इट इज रिटन एज 3, इट इज अंडरस्टूड इट इज +3. तो सक्सेसर ऑफ +3 इज 3 + 1 दैट इज 4. किसी भी नंबर को मुझे सक्सेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में +1 ऐड कर देंगे और जो भी आंसर होगा वो मेरे क्या होगा, सक्सेसर ऑफ 3 हो जाएगा. सक्सेसर ऑफ -5, मुझे इस नंबर का निकालना सक्सेसर, तो क्या करेंगे, हम इस नंबर में +1 ऐड कर देंगे. -1 -5 +1 इट इज -4. ओके, अगेन सक्सेसर ऑफ 0 क्या है, 0 मतलब +1 ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 0. आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा अब सक्सेसर मैंने क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीडिसीजर. A number less than a given integers. A number less than a given integers are called successor. अब मुझे किसी भी नंबर का निकालना है प्रीडिसीजर, तो क्या करेंगे, उस नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1. देखो सपोज वी हैव टू फाइंड प्रीडिसीजर ऑफ 3 या सपोज 5. हम क्या करेंगे, इस नंबर में -1 कर देंगे. 5 - 1 का होता है 4. 4 इज द
predecessor of 5. Again predecessor of -9. क्या करेंगे इसमें? -1 कर देंगे, -9 और -1, तो ये क्या होता है? -9 -1 -9. एक और टेबल predecessor of 0 को निकाला मुझे predecessor, क्या करेंगे? इसमें तो -1 कर देंगे, 0 -1 क्या होता है? -1. तो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि predecessor और successor का मीनिंग क्या होता है. सक्सेसर में क्या करते हैं? +1 कर देते हैं, और predecessor में क्या करते हैं? -1 कर देते हैं. किसी भी इंटीजर का, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, क्या करेंगे तो सक्सेसर में +1 करेंगे और predecessor में -1 कर देंगे. चलो नोट कर लो आप लोग. उसके बाद उनको पढ़ना है. और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. आपको दो इंटीजर्स दिया रहेगा एंड यू हैव टू कंपेयर व्हिच इंटीजर्स इज लार्जर एंड व्हिच इज स्मॉलर. ओके, सपोज you have given -9 and 0, -9 and -7, and you have told that which integers are greater. You have to find which number are greater. Look, is 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7, -8 or -9. -9 is here and -7 is here. जिस नंबर का कंपेरिजन करना है तो जो नंबर राइट साइड होगा ना वो नंबर बड़ा होता है. ठीक है, और हम जानते हैं कि नेगेटिव पे जो नंबर बड़ा होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो वो उसका वैल्यू छोटा होगा. ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ा है लेकिन इसका क्या होगा? अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो इसका वैल्यू छोटा होगा, तो ऑब्वियसली छोटा होगा. ठीक है, और हम देखते हैं सपोज यू गिवन 19 और -20. ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑब्वियसली ये में थोड़ा -20 यहाँ पर आएगा और 20 और 19 यहाँ पर आएगा. तो एक -20 और एक 19 है, दोनों एक इट इज राइट साइड, इट इज लेफ्ट साइड. हम क्या बोलेंगे? जो नंबर राइट साइड होगा वही बड़ा होगा. ठीक है, तो 19 बड़ा होगा -20. ठीक है, फिर देखो एक एग्जाम्पल और 15 और 27. ठीक है, दोनों पॉजिटिव. 15 यहाँ लाई करेगा, 27 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर. तो एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है. तो हम क्या बोलते हैं? जो नंबर राइट साइड लाई करेगा वही बड़ा होगा. तो 27 बड़ा होगा, 15 लाइक दिस, देखो लाइक दिस. ओके, इसको नोट कर लो. चलो फिर हम आगे पढ़ते हैं. अब लोग देखते हैं एडिशन और लोग देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले पढ़ लो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स. हम लोग कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर्स का, वो पढ़ लेते हैं, तब हम लोग एडिशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं किसको? एब्सोल्यूट वैल्यू of an integers is the numerical value without any साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, साइन मतलब क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, सपोज देखो. अच्छा, और इसमें एक और पॉइंट लिख लो. द सिंबल दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट an absolute value. हम लोग इस सिंबल से करते हैं रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स.
देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखो एग्जांपल सुनाते हैं। सपोज आपको बोला जाएगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और वैल्यू वही रहेगा, वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा आंसर, लेकिन आंसर साइन कुछ भी नहीं रहेगा। अगर वो नेगेटिव साइन तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। हम साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस हमको मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू से। लिखा रहेगा +6, तो वी राइट ओनली 6, ठीक है, विदाउट साइन। और एक्चुअली क्या होता है, हमारे किसी चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है विदाउट एनी साइन, ठीक है। हमने कोई साइन नहीं देना है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। लिखा रहेगा तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 + 6, इसका निकालिए आप वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 + 6 क्या होता है, -1। और ये पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या होगा, इस +1, तो प्लस लिखा नहीं आता है तो ओनली 1, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, लिखा रहेगा -9 + 8 और -2 लाइक दिस, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का हमको निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पहले मुझे उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर पहले सब बात करें, -9 + 8 इट इज -1 and -2. What is the value of -1 -2? It is -3. Now we just derive the absolute value of -3 is 3. It is the answer. Okay? तो आप इसको नोट कर लो आराम से। और हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो क्या पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स का। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है। देखो हम लोग ऐड क्या करते हैं, when two integers have common sign मतलब सेम साइन। जब 2 इंटीजर्स के पास सेम साइन होगा तब हम ऐड करेंगे इसको, ठीक है। ये कंडीशन है ऐड करने की। सपोज देखो -5 और -3, ठीक है, मुझे इसको ऐड करना है। क्या करना है, -5 और -3। तो क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, समझे कैसे। देखो इसका साइन होगा माइनस साइन, इसका साइन क्या है माइनस, तो बोथ नंबर्स हैव नेगेटिव नंबर्स, इसका ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, सेम साइन, क्या करेंगे तो ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 + 3 क्या होगा 8, ठीक है। लेकिन साइन क्या लेंगे, जो कॉमन साइन होगा वही लेंगे। यहाँ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। ऐड करेंगे विथ कॉमन साइन, ठीक है। अगर दोनों नंबर का अगर साइन सेम है, अगर दोनों नेगेटिव है तो ऐड करेंगे और साइन क्या रहेगा जो कॉमन साइन, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा। सपोज करो कि +5 और +3 ऐसा रहता तब भी हम लोग ऐड ही करते हैं, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो सेम नंबर तो ऐड कर लो। 5 + 3 क्या होगा 8, और साइन क्या रहेगा प्लस या माइनस, कॉमन साइन, इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, तो दिखते नहीं पॉजिटिव, तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। तो हम ऐड कब करेंगे, जब सेम नंबर होगा तब ऐड करेंगे, और साइन क्या रहेगा कॉमन साइन, नेगेटिव तो ये यहाँ भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। देखो ये कब करते हैं, when 2 integers have different
साइन। जब दो नंबर का, जब दो इंटीजर का अलग अलग साइन होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, सपोज करो कि एक नंबर दिया हुआ +9 और एक नंबर दिया हुआ -3, +9 और -3, ठीक है। तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, दोनों अलग अलग नंबर साइन है ना, डिफरेंट साइन का नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नंबर नेगेटिव है। जब भी डिफरेंट साइन का नंबर रहेगा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 है ना, 9 - 3 6 होता है। और साइन क्या होगा? साइन है हमारा विथ साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर्स, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का रहेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर देंगे लेकिन साइन क्या होगा? जो नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 3, तो 9 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आंसर होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। और देखो -7 -21, इफ इट इज, अगर यहाँ पर कोई नंबर कुछ साइन है दिया हुआ तो समझ आना कि यहाँ पॉजिटिव नंबर साइन होगा, ठीक है। तो +7 पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 21 - 7 क्या होगा? 14, और साइन क्या रहेगा तुम्हारा? साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर्स, तो बड़ा दोनों को बड़ा है, 21 बड़ा है, तो 21 का साइन क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐड कब करते हैं? जब दोनों नंबर का साइन सेम रहेगा तो ऐड करेंगे, और साइन क्या रहेगा तुम्हारा? कॉमन साइन, प्लस प्लस तो यहाँ प्लस, सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। और सब्ट्रैक्शन कब करते हैं? जब दोनों नंबर का साइन अलग अलग होता है, डिफरेंट साइन होता है, ठीक है। एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो माइनस कर देंगे, बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है। और साइन क्या रहेगा? साइन रहेगा जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का रहता है। +7 -21 क्या हो गया? पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे, 21 में से माइनस कर दो 14 आएगा, और साइन क्या रहेगा तुम्हारा? 21 बड़ा है तो साइन इसी का रहेगा, तो -14, ठीक है। समझ गए हो तुम लोग? तो जितना भी क्वेश्चन है 1A का सब तरह से बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करना घर में, अपने कॉपी में ट्राई करना, सब समझ जाएगा आई थिंक। ये तो क्वेश्चन में करा दो, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में करा दो, फिर मैं हमको दे दूंगा रिमेनिंग क्वेश्चन, जो बच जाएगा तुम लोग घर में करना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बोला कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड, 6 और 18 दिया हुआ, ठीक है। क्या बोला कि फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए सेकंड से, है ना, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए सेकंड से, तो फर्स्ट को करना सब्ट्रैक्ट सेकंड से, इससे करना है तो इसको आगे लिखेंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना है 6 को तो उसको आगे पीछे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 18 - 6 12 आएगा, और बड़ा कौन है? ये बड़ा, तो साइन रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो 18 - 6 क्या होता है? 12। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर देख लो, थर्ड नंबर क्या लिखा हो? -27, -54। सेम क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट इंटीजर को फ्रॉम द सेकंड इंटीजर, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना इससे, इसको आगे लिखेंगे, पहले इसको लिख दो, अब सब्ट्रैक्ट करना है -27 को यहाँ लिख दो, ब्रैकेट क्यों दिए? बिकॉज ये नंबर नेगेटिव था, है ना, तो यहाँ पे तो नेगेटिव को दिक्कत बैक को दिक्कत, और सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे क्या करना? सब्ट्रैक्ट होता है, एडिशन करें तो यहाँ प्लस करते थे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ प्लस माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे? फर्स्ट काम मेरा रहेगा कि ब्रैकेट को रिमूव करना है मुझे, -54, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस माइनस बन जाता है प्लस, है ना, क्या बन जाता है? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। अब देखो ये नंबर है नेगेटिव, ये नंबर है पॉजिटिव, ठीक है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो अभी हम जस्ट पढ़े, अगर अलग अलग नंबर आते क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 54 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27, ठीक है ना, कितना आएगा? 27 आएगा, और साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, तो 54 बड़ा है 27 से, तो साइन इसी का रहेगा ना, माइनस, तो आगे हमारा आंसर -27, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन 2 देखो, फर्स्ट इजी है, सेकंड देखो 16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 14 माइनस -2 माइनस -6, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, इसका करना है वैल्यू फाइंड करना है। तो 16 माइनस ब्रैकेट देंगे, तो क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव करना, मुझे स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको मुझे रिमूव करना है। तो क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस था, जस्ट पढ़ेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, +2 अगेन माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो 16 माइनस, तो 14 + 2 16 और 16 + 6 22, वी कैन रिमूव दिस ब्रैकेट, ठीक है। नाउ 16 is positive, 22 is negative, one number is positive, other number is negative, we will always do subtraction, okay. So 22 minus 16 is 6, and what is the sign, positive negative, 22 पड़ा है तो साइन इसी का रहेगा, तो -6, तो ये तुम्हारा आंसर है। 6 का सेकंड भी बन गया, फर्स्ट आप खुद से बना लोगे, आसान है, ठीक है, अब सब क्वेश्चन बन जाएगा, अब कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलो तो इतना रहते हैं आज, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, टिल नाउ